Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 4. Chapter 4 is matter, solid, liquid and gas. So only listen of this lecture. Take out your book and open page number 35. In previous class I explained what is matter, what is particles and property of particles and arrangement of particles of solid and liquid. And today we will discuss arrangement of particles in gas. Arrangement of particles in gas. So listen, in gas the particle are loosely packed. जो bonding होती है वो loose होती है. I draw one diagram before explain. This diagram show the particles arranged in gas. So the particles in gas, the particles are loosely packed. Loosely packed होते हैं. Second one is the force of attraction between particles are very weak. इन दोनों के बीच जो attraction होता है, attraction between two particles are वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होता है. ये एक दूसरे को फ्री छोड़े रखते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं होती है इनमें. सो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसलिए इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. देर आर लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स टू मूव अराउंड फ्रीली. इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप होता है, इसलिए ये अपने अपने अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं. Thus gas have neither have a definite volume and definite shape. इसीलिए इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम या डेफिनेट शेप नहीं होता है. जिस भी कंटेनर में आप डालते हो उसी का वो शेप ले लेता है. ओके, then after open the page number 35, fill in the blanks. In last side, in downside, fill in the blanks. So first is a dash of substance show all the property of a substance. एक ऐसी क्या वो क्या है जो एक सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज को शो करता है. सो सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज को शो कौन करता है? पार्टिकल्स. पार्टिकल्स. सो फर्स्ट फिल अप विथ पार्टिकल्स. A particle of a substance shows all the property of substance. And second one is there are dash basic state of matter. There are three basic state of matter: solid, liquid and gas. Third one, the force of attraction between particle are strongest. In which matter have strongest bond in between particles. So solid have strongest bond in particles. So answer is solid. And fourth one is in dash there are large space between particles. किन टू किस स्टेट ऑफ मैटर में टू पार्टिकल्स के बीच बहुत स्पेस होती है, लार्ज स्पेस मेंटेन इन टू पार्टिकल्स. सो इन गैसेस, इन गैस. फिफ्थ वन इज डैश ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इन इट. जिस भी कंटेनर में आप पोर कर दो उसी का ही वो शेप ले लेता है. क्या होता है वो? दिस इज द this type of matter is liquid. So fifth one
is liquid. Listen again. First filled with particles, second 3, third one is solid, fourth one is gas, and fifth one is liquid. Okay. Then turn the page number 36. In first is solution. So what is solution? Solution is a mixture which the component are spread uniformly, यानी जिसमें कंपोनेंट जो 1 मिनट solution. Definition of solution. Solution is a mixture in which component spread uniformly. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन वो होता है, सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, यानी बराबर बराबर या एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिक्सअप रहते हैं. सो एंड कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन आर सॉलिड एंड सॉल्वेंट. कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लिसन, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड मटेरियल, solute means a substance, that dissolve in another substance, एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट मीन्स अ सब्सटेंस इनटू विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व. जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. अ सब्सटेंस इनटू विच अ solute dissolve. Okay, so for example I make a solution of sugar and water. So in this solution शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर उसमें अपने आप वाटर जो है वो अपने आप में सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहा है. एंड सॉल्यूट क्या है? जो डिज़ोल्व हो रहा है. तो सॉल्यूट इज शुगर एंड सॉल्वेंट इज वाटर. लिसन वन टाइम. सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली. एंड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर क्या है? कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सो व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट? सो सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस. वो सब्सटेंस जो कि दूसरे में डिजॉल्व हो जाता है ना, डिजॉल्व हो जाता है, मिल जाता है. एंड सॉल्वेंट क्या है? अ सब्सटेंस इनटू विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व, यानी वो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है. सो सपोज दैट कि एक सॉल्यूशन लिया है शुगर और वाटर का. सो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. एंड many substance dissolve in water, so water is a universal solvent.
बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है. मैनी सब्सटेंस आर डिज़ोल्व इन वाटर, सो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. एंड नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. What do you mean by saturated solution? When a solution cannot dissolve any more solute in of the solute, it is called saturated solution. Saturated solution वो होता है जब solution में और solute को मिलाने की कैपेसिटी नहीं होती है. When a solution, listen to me, when a solution cannot dissolve एनी मोर सॉल्यूट, है ना, और ज़्यादा नहीं मिला सकता है उसमें सॉल्यूट, उस कंडीशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. सो डेफिनेशन लिखो. व्हेन अ सॉल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व any more of solute, this condition is known as saturated solution. Listen one time again. Saturated solution, definition of saturated solution: when a solution cannot dissolve any more of solute, जब solute को और ज़्यादा मिलाने की कैपेसिटी नहीं होती है solution की, उस solution को saturated solution कहते हैं. This condition is known as saturated solution. Okay? And I give to you homework, read page number 35 and 36. Okay? Thank you.